How to find out the tension by the application of your Newton's first law of motion. Today we will discuss, we will evaluate your tension as well as normal reaction, but in case of an inclined plane. Let us see these special cases, how we are going to find out the tension and normal reaction when a mass is placed in an inclined surface. See, here I have drawn a drawing where there is an inclined surface. I have placed a mass m here, and it is attached to a string which is derived from a wall, right? Now the question is find the normal reaction, and you know that the normal reaction will be acted upon this mass and the tension will be acted upon this string. So the question is, he is asking that find the normal reaction and tension for this question. Okay, so today we will evaluate how tension and normal reaction can be evaluated for this inclined surface. Okay, see, here actually this inclined surface has at an angle theta from horizontal. Okay, so can you tell me that one thing, if a mass is placed in an inclined surface, see, it doesn't matter if your mass is placed on a horizontal surface or in an inclined surface, always the weight will be acting vertically downward. So from the beginning itself I have drawn the mg, you see here. But the thing is that how to draw the normal reaction? As I told you the method, that normal reaction should be drawn 90 degree to the touching surface. See, this mass is now touching this surface, right? So you need to draw normal reaction with an angle 90 degree to this corresponding surface. So I hope our drawing is almost correct for both normal reaction and tension. You know it already. Okay. So now let me tell you one thing. See, can you see that this is a right angle triangle? Huh? It is clearly visualizing. No, this is a right angle triangle, and this angle is your 90 degree. Okay. See, if this is 90, this is theta, then obviously this will be 90 minus theta. Is it? Because you know that if we add all the three angles of a triangle, then it should come 180 degree. So if this is 90 and this is theta, then automatically the third angle will be 90 minus theta. See, I will do one thing here. I will extend this normal reaction parallel, like this I have extended. Okay. So what I have drawn actually, this normal reaction I have just extended parallel. So can you tell me that now this whole angle is 90 degree, right? Is it? Now this whole angle is 90 degree. If this whole angle is 90 degree and this is your 90 minus theta, then this angle will be theta. Is it? See, once again, once again you just repeat with me. Okay. First of all, this is a right angle triangle. This is 90. This is theta. So this angle will be 90 minus theta. Now do the second thing. Extend this normal reaction like this. Now you can visualize that this whole angle is 90 degree. If this is 90 minus theta, then automatically this will be theta. Okay. Now you see this mg is in touch with this theta. And this component, can I write mg cos theta? Because yesterday only we discussed the vector or the component which is connected with theta, that will be your cos component, right? So see, this is mg, this is theta, and subsequently this component will become your mg cos theta, and which will be at a 90 degree to mg cos theta, that will be your mg sin theta. Okay, so you see, if this is mg cos theta, then this line is exactly at 90 degree to mg cos theta. So I can say
this can be mg sin theta. One more thing, I don't think that it will be right approach to take this line. Can I draw a parallel line here? Yeah, I can draw, no issue. See, if I draw a parallel line here, I can assume that this line is nearly equal to this line. So now see, the same thing only. If you take a parallel line here, now this line is exactly at 90 degree to mg cos theta. So instead of writing this line is mg sin theta, I will write this line as mg sin theta. So now what I have done actually, in order to balance the all forces, or else you can say, in order to apply the Newton's first law of motion, I have resolved all the forces into components so that I can see which force is exactly is opposite to other forces, so that I can balance them and hence I can find out the unknown forces. Okay, तो हमारा मतलब ये था यहाँ पे कि देखो हमें करना क्या था एक्चुअली, हमें ये देखना था कितना अपवर्ड फोर्स है, कितना नेट डाउनवर्ड फोर्स है, कितना राइट साइड फोर्स है, कितना लेफ्ट साइड फोर्स है, ताकि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ वहां पे लगा सके और देख सके कि अगर दोनों साइड से बराबर हो रहे हैं तो जो भी अननोन फोर्स है वहां से हमारा निकल के आ जाए। लेकिन जब पहले ड्राइंग था ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा था, राइट, mg नीचे था, t और n एक एंगल में थे, तो कुछ बराबर से दिख नहीं रहा था। अभी क्या हो गया, जब mg को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक को mg cos थीटा कर लिया, एक को mg sin थीटा कर लिया, तब देखो ड्राइंग थोड़ा पल्ले पड़ रहा है। क्यों? देखो एक बार तुमने ये दो कंपोनेंट कर लिया तो बीच वाले का भी कोई काम नहीं, ये जो बीच वाला mg ये कंपोनेंट में टूट चुका है, तो इसका भी कोई भी काम नहीं। तो इसको अगर तुम मिटा भी लोगे तो तुम्हारा बचा हुआ अभी चार ही फोर्स लिखेगा तुम्हें। एक है तुम्हारा टेंशन, जिसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में है mg sin थीटा। ये देखो ये ड्राइंग ना थोड़ा सा टिल्ट होके है, राइट, अगर तुम चाहो तो इसको सीधा कर सकते हो। जब तुम सीधा करोगे ना ये कुल मिला के कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये है तुम्हारा मास, इस बाजू में है तुम्हारा टेंशन, इस बाजू में है तुम्हारा mg sin थीटा। सिमिलरली ऊपर है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन और नीचे है तुम्हारा mg cos। तो मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, मैंने अभी जो ये ड्रॉइंग थोड़ा इंक्लाइन पोजीशन में है बस उसको सीधा कर दिया मैंने। जब मैं इसको सीधा कर देता हूं तब ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। बस अभी तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाना है, मतलब देखना है टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है। यहां से क्लियरली दिख रहा है टोटल अपवर्ड फोर्स है L, जो कि तुम्हारा डाउनवर्ड फोर्स mg cos थीटा के बराबर है। सिमिलरली टोटल राइट साइड फोर्स है तुम्हारा T, जो कि तुम्हारा किससे mg sin थीटा से। तो इंक्लाइन प्लेन में अगर तुम्हें कभी नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन निकालना है तो इस टाइप का अप्रोच तुम्हें लगाना पड़ेगा और इस टाइप का तुम्हें प्रॉब्लम भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो।
मान लो यहाँ पे एक इंक्लाइन सरफेस है 37 डिग्री एंगल में, तुम्हारा यहाँ पे एक 5 kg का एक मास दीवार पे ऐसे टंगा हुआ है एक स्ट्रिंग से। ओके, सो क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हें फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन है टेंशन। बोल दिया कि जी का वैल्यू 10 मान के चलो। हाँ चलो सॉल्व। तो कैसे करोगे इसमें? आई डोंट थिंक कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला दे दिया गया है। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला था तुम्हारा mg cos थीटा, तो m तो तुम्हें गिवन है मास का वैल्यू डालो 5 इनटू g का वैल्यू डालो कितना 10। अच्छा थीटा भी दे दिया है तुम्हें 37, so that will be your cos 37, so this will become your 50 into what is the value of cos 37? yesterday I have told, I think it is 4/5, right? ये वैल्यू तुम्हें पूरा याद हो जाना चाहिए। so this is coming around 40 newton, your first answer has been 40 newton। similarly they have asked for the tension, what is the formula for tension? mg sin theta, so what is m here 5, what is the value of g 10, what is sin 37? sin theta मतलब sin 37 होगा ना यहाँ पे, so that will be your 3/5, your 5 and 5 will get cancel, so you will get your 30 newton। so you got tension 30 newton and normal reaction even 40 newton। so this is a very simple kind of problem। okay, ये बहुत सा सिंपल बेसिक्स था उसके ऊपर। बस मैंने किया क्या, जो पिछले वाले वेरिएबल के टर्म में इस बार उसमें वैल्यू रख लिया। ओके, जो पिछले बार थीटा वेरिएबल था उसकी वजह मैंने 37 डिग्री कर लिया, पिछली बार जो m वेरिएबल था उसकी वजह मैंने 5 kg रख लिया, तो बाकी जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो तुम्हारा एग्जैक्टली सेम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इंक्लाइन सरफेस में तुम डील कर सकते हो। ओके, चलो प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। इसको नोट करो पहले। हो गया? कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर चला Which one? कौन सा? कौन सा? यहाँ पर भी क्लास चल रहा है, क्लास चल रही है। ओके, सी अभी प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। चलो यहाँ पे एक इंक्लाइन सरफेस है जिसका एंगल थीटा है और थीटा हमें पता नहीं है। यहाँ पे एक मास है 5 kg। अच्छा यहाँ पे एक पुली है, ये पुली से लेके एक दूसरा मास यहाँ पे है 3 kg। ओके, एक दूसरा मास यहाँ पे है जिसका वजन है, ठीक है जी। ये एक ही स्ट्रिंग है, ये जो धागा है ना ये पूरा सिंगल धागा है, एक पुली के ऊपर ऐसा है, मतलब एक बाजू में 5 kg है दूसरे बाजू में 3 kg। सो डेफिनेटली तुम्हारा ये पूरा जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, राइट। ओके, तो पूछ लिया है, तुमने क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड थीटा, थीटा भी निकालो, पूछ रहा है कितना एंगल में है सरफेस, पूछ रहा है टेंशन कितना है, किसमें स्ट्रिंग में, टेंशन तो स्ट्रिंग में ही आएगा, तो पूछ रहा है टेंशन स्ट्रिंग में कितना है, और तीसरा चीज जो पूछ रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन। कर सकते हो क्या? मेरा माना तो तुम ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। चलो हम शुरू करते हैं। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। चलो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। ये जो 3 kg मास है ना, इसको तुम पॉइंट बना लोगे पहले। फ्री बॉडी डायग्राम पता है ना कैसे बोला गया था। अच्छा इसको अर्थ कैसे खींचेगा, 3g फोर्स से, और क्वेश्चन में गिवन है g ले लो, मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड।
ये 3G, 3G मतलब कितना हो गया तुम्हारा 30 न्यूटन। ओके, अच्छा ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर की तरफ है, मतलब इसमें टेंशन लग रहा है T, और ये जो पूरा टेंशन है वो एक ही स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा तो तुम्हारा टेंशन चेंज नहीं होगा, तो टेंशन तुम्हारा पूरा कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। तो देखो इस मास में अभी तो कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा है, ये दो के अलावा, ऊपर एक फोर्स है टेंशन, नीचे एक फोर्स है 30 न्यूटन, तो चलो इन दोनों को बराबर करो, T इक्वल टू 30 न्यूटन, पता है ना F y इक्वल टू 0, कल का स्टेटमेंट पता है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो y में जितना सारा फोर्स है सबको मिला के 0 होना चाहिए, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा इक्वल टू 0 होगा, ये सब तो कहानी तुम्हें पता ही है। डायरेक्ट ऐसा करने की बजाय ऐसा कर लो कि टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, सो अपवर्ड में फोर्स था तुम्हारा T, डाउनवर्ड में फोर्स बन गया 30 न्यूटन। चलो यहाँ पे थोड़ा आएंगे, कहानी देखेंगे कैसा है, तो क्या क्या पूछा है यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। टेंशन पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, अच्छा चलो एक आंसर तो आ ही गया तुम्हारा, टेंशन तो पूरा स्ट्रिंग में आ ही चुका है, बाकी बचा हुआ दो आंसर आना चाहिए, राइट, एक थीटा आना चाहिए, एक एन आना चाहिए। तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे, चलो तुम्हें याद है जो पिछली बार हमने इंक्लाइन सरफेस में फॉर्मूला निकाला था वो ये वाला मास के लिए निकाला था, राइट, मतलब जो सरफेस में होता है वो वाला मास के लिए वो फॉर्मूला है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि पहले देखो निकाल ही लेते हैं, एन का फॉर्मूला क्या था, mg cos थीटा, राइट, यही था ना फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला था mg cos थीटा। तो अब तुम लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आया होगा कि ये m यहां से हम, ये जो m है ये दोनों में से हम कौन सा m डालेंगे, क्योंकि इसका भी मास 5 है इसका भी 3 है, तो आंसर है तुम्हें ये वाला मास डालना है। क्यों, क्योंकि जो इंक्लाइन सरफेस के ऊपर है जो मास, उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है, तो इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कौन सा मास है 5 kg है, तो उसका फॉर्मूला डालो, ये बन जाएगा तुम्हारा 5, g का वैल्यू कितना है 10, cos थीटा, अच्छा थीटा भी पता नहीं है क्या, तब तो ये हो नहीं सकता, ओके इसको ऐसे रख लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, डाल देंगे फिर दूसरा वाला फॉर्मूला डाल दो। हाँ फॉर्मूला क्या क्या, t इक्वल टू mg sin थीटा, राइट, देखो यहां से थीटा निकल के आ जाएगा, क्यों, क्योंकि t तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 30 न्यूटन, तो उसके बदले वैल्यू डाल दो ना यहाँ पे, 30 इक्वल टू m कितना 5 इनटू g, क्या इसको मैं डायरेक्ट 50 लिख सकता हूं, पता चल जाएगा ना, ये 5 इनटू 10 50 एंड दिस इज sin थीटा। देखो ये एक 0 से एक 0 गया, ये 5 आगे उधर चला गया तो तुम्हारा हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू 3/5। कौन मुझे बताएगा 3/5 का वैल्यू कितना है, कल ही हमने पढ़े थे sin 37, राइट, सो sin थीटा इक्वल टू sin 37, sin अगर गया तो थीटा इक्वल टू कितना 37। चलो तुम्हारा ये आंसर बन गया है, दो आंसर आ गया, एक टेंशन आ गया, दूसरा थीटा आ गया। चलो अभी तीसरे को हम हट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है भैया, ये थीटा का वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। तो चलो यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं 50 इनटू, अगर यहाँ पे मैं थीटा की बदले 37 डालूंगा तुम्हारा, सो cos 37 का वैल्यू है तुम्हारा 4/5, राइट, तो यहाँ पे 40 न्यूटन है क्या आंसर, राइट, ओके, तो तीनों आंसर आ गया है तुम्हारा। चाहो तो यहाँ पे बॉक्स बना लो ऐसा, टी एन थीटा, थीटा आ गया तुम्हारा 37 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन आ चुका है 40 न्यूटन और टेंशन आ चुका है 30 न्यूटन। चलो नोट कर लो ये प्रॉब्लम को, नोट कर लो थोड़ा।
चलो मिटाते हैं यहाँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन की कुछ अच्छे अच्छे चीज देखते हैं। चलो यहाँ पे एक बड़ा सा मास है m, इसके ऊपर एक छोटा सा मास है स्मॉल है। ओके, तो तुम्हें पूछ लिया कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फॉर बोथ चलो देखो इसको कैसे करेंगे देखो। अच्छा, ये मास को सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन देगा n, ये m वापस पलट के सरफेस को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा n, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ये चीज हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, राइट? तो इसका काम खत्म। अभी दूसरे मास को, क्या दूसरा मास तुम्हारा सरफेस को लगा हुआ है? नहीं, दूसरा मास तुम्हारा पहले मास के सरफेस को लगा हुआ है। तो पहला वाला मास ये वाले मास को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा और उसका नाम इसके जैसा मत रखना, वो अलग है, तो उसको कुछ नाम दे दो n1। बाकी ये छोटा वाला मास वापस पलट के बड़े वाले मास को फिर से एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, वो भी कितना? मैग्नीट्यूड। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम साइड में बना लेते हैं। छोटू वाला मास का बना लेते हैं स्मॉल है, उसके ऊपर बड़े वाले मास ने नॉर्मल रिएक्शन दिया है n1, ये एक चीज है। और जो दूसरा वाला चीज है क्या है पता है? इसका खुद का एक वेट होगा ना, और उससे अर्थ खींचेगा mg फोर्स से, राइट? सो यहाँ पे और कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा है। देखो क्लियरली ध्यान दो कि ये जो छोटू वाला मास है इसके ऊपर सिर्फ एक ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये बाकी दो नॉर्मल रिएक्शन छोटू वाले मास पे नहीं लग रहा है, ये बड़े वाले मास पे लग रहा है। तो ड्राइंग करते वक्त ये तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि तुम नॉर्मल रिएक्शन कौन सी सरफेस से किसके ऊपर तुम ड्रॉ कर रहे हो और कौन से बॉडी में वो पर्टिकुलरली होना चाहिए, तभी तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम में आइडिया बहुत क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने छोटे मास के लिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, और ये जो n1 वाला नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ यही एक नॉर्मल रिएक्शन ये छोटे वाले मास पे कर रहा है, और बाकी जो चीज है वो है वेट, उसको अर्थ खींच रहा है। तो बाकी कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। अभी हमें सिर्फ देखना है यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कैसे लगाएं। y डायरेक्शन में हम लगाएंगे Fy = 0, और तुम्हें पता है टोटल अपवर्ड फोर्स = टोटल डाउनवर्ड फोर्स करोगे तो तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए तुम्हारा आंसर बनेगा सिंपल n1 = mg, दैट्स ऑल। चलो बड़े वाले मास के ऊपर आता है। यहाँ पे देखो मैं बड़ा वाला मास बनाता हूँ, इसका थोड़ा कहानी बनेगा कैसे देखो। अच्छा, इसके ऊपर देखो सरफेस ऊपर एक लगा रहा है बड़ा वाला नॉर्मल रिएक्शन n, और ये मास की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लग चुका है ऑलरेडी, और अर्थ भी उसे खींच रहा है कितना फोर्स है? बड़ा वाला m × g। ये m में थोड़ा ध्यान दे देना, ये थोड़ा बड़ा m बना लेना, ये थोड़ा छोटा m बना लेना, एक को कैपिटल एक को स्मॉलर बना लेना। चाहो तो तुम लोग कुछ अलग सा सिंबल भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट मास है इसीलिए m लेना ही ठीक रहेगा, राइट? सो वापस यहाँ पे लगा तो न्यूटन्स लॉ m = टोटल अपवर्ड फोर्स, यहाँ पे कितना है? एक ही फोर्स है अपवर्ड में n, लेकिन देखो डाउनवर्ड में दो फोर्स है, एक है कैपिटल mg और दूसरा वाला है कितना? n1। यहाँ से n1 का वैल्यू तुम डाल चुके हो, वो वैल्यू लाके यहाँ पे डाल दो, दैट्स ऑल। ओके, चलो ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये वेरिएबल की वजह से कुछ वैल्यू रख लेंगे और एक प्रॉब्लम कर लेंगे हम। हाँ, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो जल्दी। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दे दो, ये थोड़ा बॉक्स बना लो। हाँ, ये वाला, ये दोनों थोड़ा बॉक्स बना लो। इसका वेरिएबल टर्म में कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं।
ओके चलो मिटा लेंगे, आई होप हो गया होगा। चलो चलो पहले एक मास लेते हैं जिसका वजन है मान के चलो कुछ 5 kg, और इसके ऊपर एक छोटू सा मास है जिसका मास है तुम्हारा 3 kg। जी का वैल्यू दे दिया है, तुम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले जाओ, क्वेश्चन में गिवन है, पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फॉर बोथ। मैं तो चाहूंगा कि तुम फॉर्मूला बाय हार्ट मत करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो कॉन्सेप्ट में चले जाओ, पहले 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, वहां से और भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ऊपर तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन कुछ ले लो नाम N1, नीचे उसको अर्थ खींच रहा है कितना वेट से 3g, सो दिस विल बिकम योर 30 न्यूटन। इसमें तो अभी किसको डाउट ही नहीं होगा क्योंकि g का वैल्यू तुम्हें 10 दिया गया है और ऑलरेडी इसका मास है 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू योर 30 न्यूटन। ऊपर क्या है N1 है और तो कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा है क्योंकि 5 kg उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, एंड दैट नेम विल बी योर N1, सो आई कैन राइट हियर N1 इक्वल टू 30 न्यूटन एंड one answer has been defined. Okay, now come for the second 5 kg के ऊपर आ जाओ। अच्छा 5 kg में 5 kg के ऊपर देखो, एक तो अर्थ उसे खींचेगा कितने 5g वेट से, जो कि तुम्हारा 50 न्यूटन हो जाएगा। वापस 3 kg को ये जितना दिया था नॉर्मल रिएक्शन, 3 kg को 5 kg ने इतना नॉर्मल रिएक्शन दिया था N1, वो भी एक लगेगा नीचे N1, और बाकी सरफेस इसको एक देगा, उसका नाम ले लो कुछ N2 ले लो, या फिर तुम चाहो तो उसको N ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिर से न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा लो, टोटल अपवर्ड फोर्स मतलब N2 इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स N1 प्लस बड़ा वाला mg। N1 का वैल्यू यहां से तुम ला चुके हो 30 न्यूटन और mg तुम्हें पता हो गया होगा यहां पे 50, तो मिलके ये हो गया 80 न्यूटन एंड योर आंसर हैज बीन कंप्लीटेड। लास्ट में बॉक्स बना लो, N1 एंड N2, एक 30 न्यूटन और दूसरा 80 न्यूटन, दैट्स ऑल। यूनिट डालना मत भूलना। अरे ध्यान दो, ये सब जो हम निकाल रहे हैं ना सब फोर्स है यार, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो चाहे वो टेंशन हो, सब फोर्स है, इसलिए हमेशा मैं फोर्स का ऐसा यूनिट डालता हूं न्यूटन को, कभी भी मत भूलना। और बाकी कंफ्यूज मत होना क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स का यूनिट दोनों सिंबल सेम है ना, तुम चाहो तो अलग कर सकते हो, इसको चाहो तो NR लिख लो, काम चल जाएगा तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यूनिट के बीच में और सिंबल के बीच में, राइट। चलो ओके, चलो मैं तुम्हें एक होमवर्क दे देता हूं इस कॉन्सेप्ट के बेस में, तुम कर लो और चाहो तो कर लोगे, अगर चाहो कुछ डाउट हुआ तो फिर बाद में मुझे कांटेक्ट कर लेना। इसके बेस पे एक होमवर्क दे देता हूं। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग में भी देख लेना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको कर लेना। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फॉर ऑल मासेस, ओके ये कर लेना। और g का वैल्यू ले लो 10, गिवन है तुम्हें। चलो क्वेश्चन लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो फिर और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको सेकंड लॉ को चलेंगे।
अभी एक मास ऐसा है और दूसरा मास ऐसा है, मान लो कि ये मास m1 है, ये मास m2। अभी देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसा, तो वही सिंपल सा चीज है, कुछ ज्यादा है नहीं। सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, सरफेस इसको भी एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। इसको ले लो m1, इसको ले लो m2, ये वापस पलट के सरफेस को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। n1, ये वापस पलट के सरफेस को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा n2। क्या यहाँ पे खत्म हो गया नॉर्मल रिएक्शन? नहीं, यहाँ पे और भी नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। कैसे? देखो ये दोनों मासेस भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, m2 वापस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा n3, और ये पलट के उसको एक सेम मैग्नीट्यूड का नॉर्मल रिएक्शन देगा n3। ओके, अभी ये कंप्लीट हुआ, राइट। तो चाहो तो ये वाला जो n3 है ना, तुम बीच में से निकाल सकते हो, वो अच्छा रहेगा, थोड़ा बीच में से निकाल दो। और ये सेम मैग्नीट्यूड का नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर भी लगेगा। तो यहाँ पे तीनों नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, n1, n2 एंड n3। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा याद रख लेना, कभी कभार ये भी आ जाता है सवाल में। ओके यार, जो बचा हुआ चीज है वो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।